हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल दियाँ 3 साइडां होंदियां। ये की होंदे ने? राइट एंगल ट्रायंगल दियाँ 3 साइडां होंदियां। क्लीयर है? ट्रिपलेट 2 तरीके दे होंदे हन। एक तो होंदे ने मेरे कोले बेसिक ट्रिपलेट, जिवें सब तो बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5, फिर आ जांदा अपने कोले 5 12 13, फिर आ जाओ अपने को 8 15 ते 17 20 21 29 9 40 41 11 60 ते 61। ये ट्रिपलेट ने ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋਮੈਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬੇਸਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂਜੂਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ 1 2 3 4 5 6 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਈਪੋਟਨਸ। ਬਾਕੀ 2 ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੈਗਸ। ਲੈਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਕੀ ਨੇ? ਲੈਗਸ। 13 ਹਾਈਪੋਟਨਸ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਗਸ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਡਰਾਈਵ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ 3 4 ਤੇ 5 ਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 6 8 ਤੇ 10 ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1.5 2 ਤੇ 2.5 ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1 4/3 ਤੇ 5/3 ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ is 30 centimeter and its area is 30 centimeter square. Its area is 30 centimeter square. If the larger side of measure is 30 centimeter, larger side की है 30 centimeter, then what is the length of the smaller side of triangle? देखो मैं जो ਲੈਕਚਰ 1 ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈंने ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ जिस का पैरीमीटर की होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस जो लार्जेस्ट साइड की अपने को 13 सेंटीमीटर, यानी कि बाकी की हो जाएगा दोनों साइडा सम की होगा 17 सेंटीमीटर। मतलब जो एक साइड में ए लूँगा तो दूजी 17 माइनस ए तो यह की होगी 13। तो बाय हीरोन्स फार्मूला मैं ए कढ़ लूँगा। बट ध्यान ना देखो, जे मैं इतने ट्रिपलेट लावां, जे मैं इतने ट्रिपलेट लावां, ट्रिपलेट लाने का की मतलब है? मैनू दिख रहा है कि जी लार्जेस्ट साइड है 13, तो मैनू कोई ट्रिपलेट दिमाग च आ रहा है? जे मेरे ट्रिपलेट आ रहे 5 12 ते 13, जिसका एरिया की होगा अपने को जे देखिए जिस ट्रिपलेट का एरिया कढ़िए, एरिया होंदा राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लैग्स 5 इंटू 12 की आ जाएगा 30। तो अपन भी एरिया कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर।
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ 12 ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 30, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ 90 ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਲਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹ A ਹੈ ਤੇ ਇਹ A ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ √2 ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਈਡ 5 ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5√2 ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 1/2 × √2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ 30 ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਂਗਲ 60 ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ 1 ਹੈ ਤੇ 60 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ √3 ਹੈ, ਤਾਂ 90 ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ 5, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 5√3, ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 5 × 2 10। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 10 ਹੈ, ਤਾਂ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 10/√3, ਤਾਂ 23 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 10/√3। ਤਾਂ ਜੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 20/√3। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 6 + 3√2। यानी कि जो पैरीमीटर है वो कितना अपने को 6 + 3√2। दैन वट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो आप की करा आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल लवांगे, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। जे 1 यूनिट है, 1 यूनिट है कितना होगा √2, तो टोटल पैरीमीटर कितना हो गया 1 + 1 2 + 2 2√2, यानी कि 2√2 x की वैल्यू कितनी दी हुई अपने को 6 + 3√2 ना, इनू आप एक्स मान लेने, इनू एक्स तो की होगी अपने को √2x। ध्यान ना देखिए अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने को 6 + 3√2 अपॉन 2 + √2। उपरों की कॉमन निकलता पे मेरे को 3 कॉमन निकलता पे, तो अंदर की बचूगा अपने को 2 + √2, तो थले भी की बच रहा अपने को 2 + √2, ये कट गया। तो एक्स साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3। तो आपने की पता करना एरिया, एरिया की होगा 1/2 x × x² यानी कि 1/2 × 9 कितना एरिया होगा 4.5। देखो कितना आसान सवाल हो गया। आपने इनू एक्स लिता, इनू एक्स लिता है √2x, अपन पैरीमीटर गिवन सी इन्ना, तो x + x 2x + √2x यानी कि बन जू 2 + 2√x कि बराबर होगा 6 + 3√2 दे। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 + 3√2 ओवर 2 + √2। तो अपने को 3 कॉमन कढ़ लवेंगे, तो 2 + √2 ना 2 + √2 कट जूगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो एरिया की होगा 1/2 x² यानी कि 1/2 × 9 कितना एरिया होगा 4.5। ठीक है। देखो आप तीजी गल जी समझनी है वो ये है, मेरे को अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी ते ट्रायंगल सी। आ साइड अपने को ए है, आ साइड बी है, अपने को साइड सी है।
ठीक है। तो सी बी तो सी ते परपेंडिकुलर मारे पी, तो मैनू पता राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया की होगा हाफ इंटू ए बी। ये सब कुछ आप पहले लैक्चर च बेसिक च सीख चुके हैं, ठीक है। तो होर भी की हो सकता है, जे मैं सी बेस ले ला तो की होगा हाफ पी इंटू सी। उन्हें दोनों एरिया बराबर ने, तो अपने को की होगा हाफ ए बी कि बराबर होगा हाफ पी सी दे। हाफ नाल हाफ कट गया, तो जोड़ा पी है वो कि बराबर होगा ए बी बाय सी दी। मतलब जब कदे भी ये परपेंडिकुलर कढ़ना हो थोनू जोड़ा हाइपोटेनस तो पॉइंट बी तो मारिया, तो की होगा प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसकी अपना अगला सवाल है, देखो की सवाल अपने को कहना बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज 12 एंड 5 सेंटीमीटर। बेस ते एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 ते 12 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओपोजिट वर्टेक्स आप कढ़नी है। देखो ट्रिपलेट है की होगा ये जे 5 है यह 12 है, तो कितना होगा बाय ट्रिपलेट 13 आप पढ़ चुके हैं। तो पी कितना होगा, पी होगा अपने को 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 13। द पी कितना होगा अपने को 60/13, सीधा ही निकल जाएगा पी कितना होगा 60/13। तो थोड़ा याद रखना है जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ़नी हो तो की होगा सिमेट्रिकल फार्मूला है ए बी डिवाइडेड बाय सी। कितना होगा ए बी डिवाइडेड बाय सी। हाँ जी, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। मेरे को दो ट्रायंगल ने सिमिलर ने, एक का एरिया 12 सेंटीमीटर है, एक का एरिया की है 48 सेंटीमीटर। इफ द ट्रायंगल हैज़ कहना जो पहले ट्रायंगल की हाइट अपने को 2.1 सेंटीमीटर है, तो दूजे ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। अपने थोड़ा पिछली वीडियो भी एक चीज़ दसी सी, जे दो सिमिलर ट्रायंगल हो, मान लो एक ट्रायंगल पी के वो ए बी सी है, एक वो सिमिलर बिल्कुल वो वर्गी दिखने वाली, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, पर दिखती वो वर्गी है, वो अपने को की है मतलब उसके एंगल भी सेम हैं, साइडा भी प्रपोर्शन च ने। एदा एरिया 12 सेंटीमीटर है, एदा एरिया 48 सेंटीमीटर है। तो ये हर करस्पोंडिंग पार्ट मतलब हर एक साइड करस्पोंडिंग साइड करस्पोंडिंग हाइट करस्पोंडिंग इन सर्कल करस्पोंडिंग सरकम सर्कल, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ रेशो की होगी बराबर होगी। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ रेशो की होगी अपने को बराबर होगी, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन्हां दे एरिए दे होगी। जे आप ये चीज़ लाइए तो आपको पता चलेगा कि H1/H2 की होगा स्क्वायर रूट ऑफ A1/A2। H1 2.1 है, H2 अपने कढ़नी है, A1 12 है, A2 48 है। जब आप कैंसल करिए तो 2.1/H2 1/4 का रूट 1/2, तो H2 कितनी आ जाएगी अपने को 4.2 सेंटीमीटर। तो H2 कितनी आ जाएगी अपने को 4.2 सेंटीमीटर। क्लीयर है गल। तो H2 कितनी आ जाएगी बाय दिस 2 सेंटीमीटर। तो याद रखना दो सिमिलर ट्रायंगल के सारे करस्पोंडिंग पार्ट की होंगे ने अपने को इक्वल होंगे हैं, तो एरिए दे की लेना होंगे आपने स्क्वायर, एरिया का की लेना होंगे आपने स्क्वायर, स्क्वायर रूट एरिया का की लेना होंगे आपने स्क्वायर रूट वर्गमूल, एरिया का की लेना होंगे आपने स्क्वायर रूट वर्गमूल। हाँ जी, अपना अगला क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3, 4, 5 सेंटीमीटर, द एरिया फॉर्मड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ दैम। तो देखो की होगा मेरे को
3 4 5 ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੇਗੀ 3 4 ਤੇ 5 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ मैंने उसका एरिया पता करना तो याद रखो जी मिड पॉइंट में जोड़ना ट्रायंगल बनती होंगी है वह एरिया 1/4 होंगे ओरिजिनल ट्रायंगल दे ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया इस टाइम तो अपन दी हुई है ट्रिपलेट दी हुई है तो आप हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लैग्स ना कढ़ लवेंगे पर जे थोनू ट्रिपलेट ना दिते होंगे तो पाइथागोरस ला लेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करने लिए तो इसका एरिया आ जाएगा ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 6 तो मिड पॉइंट वाली ट्रायंगल का एरिया की आएगा इसका चौथा हिस्सा यानी कि 3/2 1.5 याद की रखना अपने मिड पॉइंट ना बनी हुई ट्रायंगल का एरिया की आएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल की आएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया की सी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लैग्स तो कितना आ गया सी 6 तो मिड पॉइंट वाली ट्रायंगल का एरिया की आएगा 6/4 यानी कि कितना होगा 1.5 अगले सवाल च अपन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पता करना है जिहदा हाइपोटेनस आपां दिता है ये आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जे आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल होवे मतलब एंगल भी 45 दा आ भी 45 दा ये 90 है तो जे एक्स होवेगी ये एक्स होवेगी तो कितनी होवेगी अपने कोले √2x तो आपां √2x की वैल्यू दी हुई है कितनी है 5√2 तो √2 ना √2 कैंसल हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 तो इस ट्रायंगल का एरिया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया की आएगा हाफ एक्स स्क्वायर यानी कि हाफ 5 का स्क्वायर 25 तो कितना आ जाएगा 12.5 कितना आ जाएगा 12.5 क्लीयर है अपने ट्रायंगल का एरिया करना सी अपन आज साइड दी हुई सी अपन कंसैप्ट पढ़िया तो √2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तो हाफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने को 12.5 अगला सवाल अपने को इफ द सीवियन डिवाइड द लाइन इन द रेशो 3:5 तो आपने एरिए ਜਿਹੜੇ दो ट्रायंगल बननगे उन्होंने एरिए की रेशो पता करनी है तो अपने को जिमें एक ट्रायंगल है सीवियन का मतलब समझो अपने को ट्रायंगल ABC है जे किसी भी ऑपोजिट वर्टेक्स तो कोई भी लाइन आप खिंचते हैं वो कुछ भी हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो मीडियन हो चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसैक्टर हो कुछ भी हो की होगी हमेशा उन्होंने की कहने आप जनरली सीवियन कहने तो सीवियन है जी बेस नू 3:4 पार्ट डिवाइड कर रही है तो यदा सिंपल सलूशन है कि जोड़े इन्हों द्वारा जोड़े एरिए बने ने मान लो A1 है ये A2 है तो यदी रेशो भी की आएगी जो इन्हों के बेस की रेशो है जो इन्हों के बेस की रेशो है क्यों आएगी मैनू पता इस ट्रायंगल ADC की हाइट भी की अपने को H जे आप इन्हों की हाइट खिंचीए H तो ट्रायंगल ABC की भी हाइट की है अपने को H जो ये है वो है तो आपको पता एरिया की होंगे हाफ H1 इंटू B1 रेशो हाफ H2 इंटू B2 रेशो H तो सेम ही है हाफ नाल हाफ कट जू H नाल H कट जू तो रेशो एरिया की रेशो भी की आऊगी B1 रेशो B2 तो एरिया की रेशो भी की आएगी अपने को B1 रेशो B2 यानी कि सीवियन जो रेशो च बेस नू डिवाइड करूगी इको ट्रायंगल च उही रेशो च की रेशो च की डिवाइड हो जाऊगा अपने को एरिया मान लो जो पूरी ट्रायंगल का एरिया अपने को 70 दिता होंगे ट्रायंगल ABC का पूरी ट्रायंगल का एरिया की दिता होंगे 70
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਪਾਰਟ ਹੈ 4 ਪਾर्ट है, टोटल पार्ट की है 7, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है अपने को 70, तो 3 पार्ट की वैल्यू की होगी 30, 4 पार्ट की वैल्यू की होगी 40, यानी कि पहले पार्ट की वैल्यू 30 होगी, दूजे पार्ट की वैल्यू की होगी 40 होगी, यानी कि आह वाला पार्ट जिसका बेस 3 है ये एरिया की होगा 30 तो एरिया की होगा अपने को 40 होगा। याद रखनी है तुसीं ये चीज़, जिस रेशो च बेस डिवाइडेड होया उसी रेशो च की होगा एरिया डिवाइडेड होगा, उसी रेशो च की होगा अपने को एरिया डिवाइडेड होगा। देखो अगला सवाल की कह रहा है, कहता इफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 41 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 180 स्क्वायर यूनिट, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लैग्स ऑफ ट्रायंगल। देखो इसका की मतलब है, पहली गल तक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस हाइपोटेनस कितना 41 सेंटीमीटर, तो आप एक ट्रिपलेट किया सी, की ट्रिपलेट सी 9 40 ते 41, क्लीयर है। तो देखो देख पहले आप देख रहे हैं कि यह दूजी कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं, दूजी कंडीशन की है जिहड़ा एरिया है वो कितना आना चाहिए अपने को 180, तो एरिया देखते हैं अपने को 180 आ रहा, हाफ इंटू 9 इंटू 40, तो सैकेंड कंडीशन भी सैटिस्फाई होगी, पहला 41 दूजा 180, यानी कि अपने को ट्रायंगल ही की बनेगी 9 40 41, तो किस तरीके की ट्रायंगल होगी 9 40 41, तो आपको की पूछे डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लैग्स, आ लैग्स होंदियां तो इन्हां दा डिफरेंस क्या होगा 31 सेंटीमीटर। क्लीयर है। ये सन अपने लैवल 2 के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जे थोनू थोड़ा कोई क्वेश्चन डाउट होवे ते थोनू कोई डाउट होवे जेडे क्वेश्चन आपां ने कीते ने, थोड़ा कोई क्वेश्चन डाउट होवे ट्रायंगल विचकार किहदे विच ट्रायंगल दे विच तुसीं कोई क्वेश्चन सॉल्व कीते होण ट्रायंगल दे कितों किसी बुक चों, ते थोनू वो क्वेश्चन की हुण किसी क्वेश्चन डाउट होवे उसका सिंपल सोल्यूशन ना मिल रहा होवे, ਜਾਂ फिर जो क्वेश्चन मैं कराए ने उन्हां 'च कोई डाउट होवे तां तुसीं कमेंट सैक्शन विच वो क्वेश्चन लिख सकते हो, तो जोड़े मेरे क्वेश्चन जो कोई डाउट होवे तो तुसीं क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुसीं क्वेश्चन कमेंट कर दो, ठीक है। अगले लैक्चर च मैं हो सका थोनों अपनी ईमेल आईडी जीमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी जीमेल आईडी लिख लो, मेरी जीमेल आईडी हैगी है। जे थोनों कोई भी क्वेश्चन डाउट होवे तुसीं मैनूं सेंड करना होवे तो तुसीं इस आईडी ते सेंड करो komal53752@gmail.com, ठीक है। इस जीमेल आईडी ते क्वेश्चन सेंड करो, थोनों डाउट क्लास विच वो क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जू, मेरे डाउट जोड़े क्वेश्चन ने उन्हों का सोल्यूशन भी मिल जू, तो जो तुसीं क्वेश्चन सेंड किया वो किसी ने उसका भी सोल्यूशन उस डाउट क्लास च मिल जूगा। धन्यवाद। तो इसी तरीके के होर लैक्चरां नूं लैण लई ते क्वेश्चनां दे ईजी सोल्यूशन लई इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, ज़्यादा तो ज़्यादा मेरी वीडियो नूं शेयर करो। धन्यवाद।